welcome you all to my brand new YouTube channel. Today in this video we are going to discuss about the basic concepts of ultrasonic testing. What is the principle behind it? What are the different types of probes, be it normal probe, DR probe or angle probe, the various functions in a CRT monitor related to ultrasonic testing, that is our DS324, and all the related concepts behind it. So stay tuned, we are going to start. Thank you. So to begin with, what is the principle behind ultrasonic testing? To tell you that what is the principle, we are having a sound source like the probe. It starts with the probe. There is a crystal called piezoelectric crystal. This is the principle which I am going to tell you. There is a crystal called piezoelectric crystal. In the piezoelectric crystal there are vibrations, mechanical vibrations. These mechanical vibrations are being converted into electrical pulses, and electrical pulses are converted into magnetic pulses. No, electrical pulses are going to be changed to mechanical vibrations and mechanical vibrations to electrical pulses. So that is the principle behind it. Secondly, we have different standard blocks. First is the IIW V1 block, which is this. This is a standard block which is available everywhere in the world. This is IIW V1 block, where IIW stands for International Institute of Welding V1. Okay, and the second block is IIW V2 block, International Institute of Welding V2 block. There are other blocks as well which are used as reference blocks. So they are step block and moon block, half moon block. Okay, we are having only IIW V1 and IIW V2 block, so we will discuss in bit detail regarding what are the IIW V1 and IIW V2. Of course, I have made a detailed video regarding what are the IIW V1 and IIW V2, but in this video I am going to tell that as well in bit quick way. Okay, so first of all, this is IIW V1 block. Okay, this is standard block which is available everywhere in the world. This is made up of mild steel. Okay, this is made up of mild steel, and this is ground surface finish is there in this, and here we have the perspex to check the velocity variation in case of steel and mild steel, and perspex. This is perspex. Okay, so the total length of this block is 300 mm from here to here. Okay, and the width is from here to here, it is 100 mm. There is a notch over here which you can see here. This is used for checking the resolution of the probe. Here from here to here, let me show you. From here to here, this distance is 100 mm. This distance is from here to here is 91 mm, and from here, the lower portion of the notch to the bottom here is 85 mm, and the radius of this perspex part is 25 mm. This is having dia 50 mm. Okay, this is the hole which you can see. A pinhole is there like this. It's a through hole all through the thickness of this block. Okay, this is to check the sensitivity of the probe, sensitivity of the machine, and here we are having different angles, so as to check that whether a probe is of those angles or actual angles or not. So I will discuss each and everything in bit detail. So yeah, that's it for about the discussion. Okay, here is the
the circular arc is there, you can see is there, a notch of circular arc is there. Okay, this is to check the angle probe, that whether it is this is to calibrate angle probe. Okay, and yeah, this part from here to here is used for checking the dead zone. From here to here, this small distance is 5 mm, and from here to here is 10 mm. This is to check the dead zone. If the dead zone is coming to be, if you have selected the range from 0 to 25, then if you are checking from normal probe, then if it is in the 10 region, it is coming in the 10th region, then it is good, that it is up to there. And if it is not coming, then it is greater than that. Okay, all right, so okay, so let's start to calibrate the machine. First we will calibrate the normal probe. Let me tell you in brief what is the normal probe. Normal probe is a probe in which the sound waves are traveling perpendicular to the specimen. For example, we are using this specimen, this V1 block, and we have to send the pulses like this. You can see in the screen, that these are sending pulses. See this, and when we put our gate to that one, it is here. Okay, so हमने इसे सेट कर लिया है 100 पे, 100 डेप्थ पे, which is 100.3 C इस पे, और यहाँ पे हम रेजोल्यूशन चेक करते हैं. यहाँ पे अगर ये 10 ये इसका आ रहा है, यहाँ इसे लेके चलते हैं. Yeah, this is 14, coming nearly to be 14. Okay, so the dead zone here is coming to be more than 14 over here, like this up to here. Okay, so अभी इसमें हम पता कर लेते हैं हमारा डेड जोन कितना आ रहा है. 40 के आसपास आ रहा है, 40 mm. Okay, मतलब ये इससे ज़्यादा है, इस डेप्थ से ज़्यादा है. Okay, so in the normal probe we have a piezoelectric crystal which is perpendicular to the this circular area. इसमें जो एंगल piezoelectric crystal होता है, जो कि मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को मैकेनिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो इसके नॉर्मल होता है सरफेस के. ओके, सो यहाँ से जो पल्सेस आती हैं, ये सरफेस के नॉर्मली ट्रैवल करके एग्जैक्ट इसके नीचे या लाइक दिस यहाँ पे आ जाती है ट्रैवल करके. तो ये था हमारा नॉर्मल प्रोब. नॉर्मल प्रोब में एक और खासियत होती है कि नॉर्मल प्रोब में ये इतनी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये इसमें जो आपका डेड जोन आपने अभी देखा स्क्रीन पे, वो डिस्टेंस है जहाँ तक अगर डिफेक्ट होगा भी तो हमें पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो हमारा डिस्टर्बेंस आता है उसके कारण हम पता नहीं सकते कि वहाँ पे असली में कोई डिफेक्ट है कि नहीं. इसी चीज़ को दूर करने के लिए आया है हमारा नेक्स्ट प्रोब विच इज़ कॉल्ड द टीआर प्रोब. टीआर प्रोब में हमारी जो को एक्सियल वायर होती है, आपको मैं बताऊंगा इसमें, पहले हम इस प्रोब को डिस्कस कर लेते हैं. ये होती है मिनी लैमो की सॉकेट के लिए. ये मिनी लैमो सॉकेट है, 2 सॉकेट होते हैं इसमें, मिनी लैमो सॉकेट 1, मिनी लैमो सॉकेट 2. दीज आर डिफरेंट फॉर रिसीविंग एंड ट्रांसमिटिंग. और आप देख सकते हैं इसमें कि इसमें जो क्रिस्टल है उसके बीच में एक चेम्बर है. ओके, सेपरेशन है. और ये जो आपको वाइट यहाँ दिख रहा होगा, I'm sure आपको दिख रहा होगा, ये वाइट का जो है, ये 2
क्रिस्टल यहाँ पे लगे हुए हैं एट एंगल दिस, सी दिस इज दिस वन, एंड दो एंगल ऐसे लगे हुए हैं, ऐसे एंगल पे लगे हुए हैं फ्रॉम अ फ्लैट वन, सी लाइक दिस, ऐसे इस एंगल पे लगे। ये हमारा सर्फ नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये ऐसे लगे हैं, ऐसे मैं आपको कैसे बताऊँ, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस है और ये आपका वो है प्लेट, ऐसे ये इंक्लाइन है, ऐसे हॉरिजॉन्टल से ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, ये इंक्लाइन, इधर भी एक और आपका पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल है ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल से ऐसे वो है, ये हॉरिजॉन्टल है। तो ये एक एंगल पे नीचे जाएंगे, उसे कहते हैं एक एंगल पे ये टिल्टेड है, क्योंकि ये अगर एक एंगल पे टिल्टेड नहीं होंगे तो ये पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ से भी एक वेव यहाँ से भी साउंड वेव्स आ रही है, यहाँ से भी साउंड वेव्स आ रही है, और ये ट्रैवल कर रही है पैरेलल, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगी और हमें कभी कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। तो इसलिए थोड़े एंगल पे होती हैं। ये एंगल को हम कहते हैं रूफ एंगल। दिस डिपेंड्स अपॉन द मैन्युफैक्चरर। ओके, ऑलराइट। ये ओके, तो हम अभी इन केबल्स के बारे में बता देता हूँ। केबल्स ये हमारी होती हैं कोएक्स, इसे हम कहते हैं कोएक्सियल केबल्स। इसका एक एंड होता है हमारा BNC सॉकेट में, BNC सॉकेट होता है इसमें। ये इसे घुमा के आप लॉक कर सकते हैं, ये उसके लिए होता है। और दूसरा लॉक होता है आपका मिनी लेमो लॉक। दिस गोज टू दी type of probe, okay, and this goes to the CRT monitor, which is the ultrasonic machine DGS DS324 in this case. Okay, so ये हमारा probe। फिर हाँ, अभी हम बात कर रहे थे इसमें, तो इसमें जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं ये प्लेट्स की जो वेव्स हैं, साउंड वेव्स हैं, जो अल्ट्रासोनिकली ट्रैवल करती हैं, ये वेव्स हमेशा साउंड की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होती हैं। इट रेंजेस फ्रॉम 20 किलोहर्ट्ज टू 4 मेगाहर्ट्ज और समटाइम्स 5 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, साउंड वेव्स। ये हमारे ह्यूमन ऑडिबल रेंज से ज़्यादा होती हैं, हमें सुनाई नहीं देंगी। ऑडिबल रेंज इज फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, सो ये है हमारा TR प्रोब। अब बात करते हैं हम हमारे एंगल प्रोब के बारे में। एंगल प्रोब में ये एक होते हैं, यहाँ पे कनेक्टर होता है मिनी लेमो के लिए, आप देख सकते हैं इसमें मिनी लेमो का कनेक्शन है। और ये नीचे यहाँ पे क्रिस्टल होता है जो कि ऐसे होता है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इधर, ये ऐसे लगा होता है, ऐसे एक केसिंग के अंदर है, ठीक है, और ये ऐसे लगा होता है, फिक्स ऐसा रहता है। तो फिर ये एक एंगल पे फिक्स रहता है, जो कि ये भी डिसाइड किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा कि ये किस एंगल पे है। और इसको हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस IIW VV लॉक। ओके, सो ये होती हैं 3 तरह के, 70 डिग्री, 60 डिग्री और 45 डिग्री। 70 डिग्री हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मटेरियल की थिकनेस 0 to 30 हो, अप टू 30 mm। 60 डिग्री का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा मटेरियल की थिकनेस 30 to 40 mm हो। और हमारा थर्ड जो है 45 डिग्री का प्रोब हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा थिकनेस, मटेरियल की थिकनेस ग्रेटर देन 40 mm हो। ओके, तो ये था हमारा प्रोब के बारे में, प्रिंसिपल और टाइप्स ऑफ द प्रोब्स। सो लेट्स stay tuned for more. ओके, तो अभी हम कैलिब्रेशन पे आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम नॉर्मल प्रोब से। नॉर्मल प्रोब का कैलिब्रेशन हम ऐसे करते हैं कि, और इसमें हम कैलिब्रेशन के टाइम पे जब हम इसमें कपलेंट लगाते हैं
वैसे कपलेंट का हम क्यों यूज़ करते हैं? कपलेंट का यूज़ हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारा जो प्रोब है उसकी सरफेस और इसके आपका टेस्ट स्पेसिमेन के बीच में एयर गैप आ जाता है, जिसके कारण ट्रांसमिशन पॉसिबल नहीं होता, मेजरली रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि देयर इज एयर इन बिटवीन। और जब ये एयर नहीं होती, कोई कपलेंट लगाते हो, ऑयल, ग्रीस या ग्लिसरीन या हाइड्रोलिक ऑयल एक्सेट्रा, तो इसमें जो हमारा ट्रांसमिशन है वो पूरा हो जाता है। और अगर ऑयल नहीं लगाएंगे तो रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ट्रांसमिट हो। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इसमें हम सबसे पहले कपलेंट लगाएंगे इसमें, और इसमें जो स्टैंडर्ड है इसकी थिकनेस, इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ टॉप से लेके यहाँ तक, ये है हमारा 100 mm इसकी हाइट है ये। तो यहाँ पे हो रखी है 100.3, आप देख सकते हैं। ओके, तो ये कैलिब्रेट है। और इसकी IRW V1 ब्लॉक की थिकनेस जो होती है वो होती है 25 mm। ओके, तो 25 mm इसकी थिकनेस है। आप देख सकते हैं इसमें चार बैकवॉल इको आ रही हैं। 4 बैकवॉल इको आने का मतलब है 25 into 4 विच इज 100, so it is coming 25.33। ओके, तो ये हमारा कैलिब्रेट हो गया है। अब हम इसमें सेंस करना चाहेंगे ये वाला स्मॉल होल। ओके, तो सी ये हम शिफ्ट करेंगे। ये आ रहा है हमारा 14 mm। तो अभी हम स्टील रूलर से चेक करेंगे 14 है कि नहीं। अरे एग्जैक्टली 14 है। ठीक है, तो ये हमने एंगल प्रोब, नॉर्मल प्रोब के बारे में डिस्कस कर लिया। सो नाउ लेट्स मूव टू दी TR प्रोब। TR प्रोब में 2 कोएक्सियल केबल्स रखती हैं, और एक होती है हमारा मिनी लैमो सॉकेट और एक होता है हमारा BNC सॉकेट। तो अभी से सबसे पहले इसका जो मोड है वो हम चेंज करेंगे, T+R नहीं, T-R। ओके, T-R का हम कब यूज करते हैं? जब हमारी जो मटेरियल की थिकनेस है वो लेस देन 12.5 mm हो। ज़्यादातर इसे हम यूज करते हैं फॉर लेस देन 12.5 mm थिकनेस। तो इसमें हम एंगल की ज़रूरत नहीं, एंगल 0 को रहने दीजिए। वेलोसिटी है हमारी करेक्ट, वेलोसिटी इज 5920, इट इज करेक्ट। तो अभी हम इसमें इसको सेट करेंगे। सबसे पहले इसे हम रेंज कर देते हैं इसकी 50 mm की रेंज कर देते हैं। कर देते हैं। ये 50 हो गई। ओके, इसकी रेंज 50 होगी। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे। तो 50 हमने रेंज रख ली है, और ये हमने लगाया कपलेंट। कपलेंट लगाने के बाद
अपलाइन लगाया। अभी हम इसका प्रोब 0 सेट करेंगे। प्रोब 0 को तब तक बढ़ाएंगे जब तक कि हमारा इको नहीं आ जाता। ये आया हमारा इको, इसे हमें 50 पे सेट करना है। 50 मतलब 5th डिवीजन पे सेट करना है। ये आया हमारा। ओके, देन वी हैव दिस डेप्थ इज 24.5। अभी हम इसे बढ़ा देते हैं प्रोब 0 को। ये हमने बढ़ाया, 35.15। ओके, 35.15 हो गया। इसे हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम इसका ये होल सेंस करेंगे। ये कैलकुलेट हो गया है, इसका होल सेंस करेंगे। ओके, तो ये हमारा ओके। तो ये हमारा 50 है। ये 3 इसका ये आप देख सकते हैं 14.5, जो कि हमें पता है इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक इस होल की। तो ये 14.5 है। स्टील रूलर से चेक करेंगे। सी 14.5। ओके, तो ये हो गया। हमने टीआर प्रोब, हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया टीआर प्रोब के बारे में। सो नाउ लेट्स मूव टू एंगल प्रोब। We will use 70-degree probe. Okay, so इसको हम सबसे पहले इसका मोड चेंज करेंगे। मोड तो वही रहेगा T+R, you can set it. Okay, all right. Okay, let's again restart the machine. So we will reject and on एक साथ दबाना पड़ेगा DigiScan DS on 324. Okay, so gain इसका कम कर देते हैं हम। नाइन 12 14 कर देते हैं। ओके, तो बेसिकली हम 70 डिग्री का प्रोब इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो मटेरियल की थिकनेस है, ये जो हमारा मटेरियल है, ये ब्लॉक ले लीजिए, DSC ब्लॉक ले लीजिए। ये हमारा जो मटेरियल है इसकी थिकनेस हमारी 0 to 30 mm के बीच में है। इसकी अराउंड कितनी है, लेट मी चेक, 19 mm. Okay, so we are using the 70 degree probe to find to first calibrate, और फिर हम फाइंड करेंगे इसका जो होल है, इसे हम इसका डिटेक्ट करेंगे एंगल प्रोब के थ्रू। ओके, सो फर्स्ट हम इसकी वेलोसिटी चेंज करेंगे। इट इज शेयर वेलोसिटी, आपको दिख रहा होगा 3250 सेट कर देते हैं। ओके, ये 3250 सेट हो गई।
फिर रेंज हम कुछ छेड़ेंगे नहीं, एंगल इसमें चेंज कर देंगे। एंगल हम चेंज कर देते हैं इसका 70 डिग्री, क्योंकि 70 डिग्री प्रोब है। ओके ओके, तो हमने ये कर दिया। गेट को हम ऑफ कर देंगे, गेट 2 को हम ऑफ कर देते हैं। ओके, तो अब प्रोब 0 सेट करने की बारी है। प्रोब 0 हम सेट करेंगे IW-V2 ब्लॉक से। IW-V2 ब्लॉक भी एक स्टैंडर्ड ब्लॉक है हमारा, जैसे मैंने बताया आपको। और इसमें हम सेट यहाँ पे इसमें बीम पाथ देखते हैं, डेप्थ नहीं। बीम पाथ वो एंगल में होती है। बीम पाथ जहाँ से ये वेव्स निकल रही हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स निकल रही है जो यहाँ इस एग्जिट पॉइंट से निकलती हैं, तो ये ऐसे ऐसे इंक्लाइन है, ये ऐसे 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 इंक्लाइन है इसके अंदर। तो यहाँ से वेव्स आ रही हैं और इस एग्जिट पॉइंट के थ्रू हम इसे यहाँ पे मैच कराते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है 25 mm। और दूसरी बार चेक करते हैं, यहाँ से लेके फ्रॉम हियर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, रेडियस 50 mm। तो उसी पे हम सेट करते हैं। तो आइए हम सेट करते हैं। ओके, तो ये हमारा इसमें आ गया। ये हमने वेलोसिटी, ओके, प्रोब 0 को हमने बढ़ाया। ये 25 अभी आपको गेट शिफ्ट करता हूँ। ओके, 24.66, 20। इसे ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, और फिर ये इसे ऐसे करके लॉक कर देते हैं अपने हाथ में, इजीली प्रेस करते हैं। ये 24.99 आ रहा है, विच इज़ 25। ओके, सो अब हम इसे रिवर्स में चेक करेंगे यहाँ पे। तो ये 50 में जाना चाहिए, वो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये 50 में है एग्जैक्ट 550। तो ये कैलिब्रेट हो गया है। तो V1 V2 ब्लॉक से भी हम कैलिब्रेट कर सकते हैं और V1 ब्लॉक से भी हम कर सकते हैं। ओके, V1 ब्लॉक से हम चेक कर लेते हैं कैसे कैलिब्रेशन करते हैं। आइए आपको दिखाता हूँ। V1 ब्लॉक को भी आप इधर पुट करोगे, hold on a second. सी 25 पे वेव उठ रही है। ओके, तो ये आप उसके नीचे, गेट के नीचे आप देख सकते हैं 24.24, और ये है हमारा 25.31। तो एक्यूरेटली आप जब उसको 10 को मैच करा रहे हो इस लाइन से, यहाँ पे जो डिविजन्स हो रखी हैं सेंटर पे, तो ये 25 आ रहा है। अगर आप इसे रिवर्स में चेक करेंगे तो आप इसे 100 में चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 100 में। ओके, तो ये 100 रिजेंबल करेगा। लेट्स चेक क्या होता है। जहाँ इसे यहाँ रखेंगे सेंटर पे, तो ये 100 पे आएगा। देखिए, यहाँ गेट ले जाते हैं, ओके, ओके,
99.31, which is let me see. Okay, one moment. This is not going up to there, but it is showing 99.67, okay, which is near about equal to the, let me see what we can do. This is coming to be, ये अगर गेट यहाँ पे हो जाता तो इसमें ये बता देता. Let me see what I can do. Okay, so see, it is coming, beam path is 100. I told you ना that ये 99 और ये 100 बता रहा है. ये देखिए 100 आ रहा है. ये इसको हमने मैच कराया, जब 10 को यहाँ पे मैच कराया तो ये 100 आ रहा है. मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो रेडियस है, यहाँ पे एक कर्व दिखा रहा है आपको, एक कर्व है, ये रिजेंबल करता है 100 पे हमारा बीम पाथ है. तो ये आप IRW V1 ब्लॉक से भी कर सकते हैं और हमारा V2 ब्लॉक से भी कर सकते हैं. तो अभी हम चेक करेंगे, अगली पार्ट ये है कि अभी हम चेक करेंगे कि एंगल प्रोब सही वाला कौन सा है. 70 वाला मैंने आपको चेक करके बता दिया कि 70 वाले को आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, ये 70 के लिए है कैलिब्रेशन. 70 के लिए कैलिब्रेशन एक और तरीके से भी हो सकती है, जो कि है ये आपको यहाँ दिख रहा है 70 पे आप जब ये रखेंगे और यहाँ पे आप पर्सपेक्स की तरफ इंडिकेट करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि 70 इज रिजेंबलिंग. यहाँ पे मैक्सिमम इको आएगी. आप सरफेस डिस्टेंस से चेक कर सकते हैं. लेट मी शो यू. यहाँ पे हमने रखा इसे, ओके, तो आपको दिख रहा होगा ये हमने 70 पे रखा है, 70 डिग्री प्रोब का. और 70 पे आपको ये 70 डिग्री यहाँ लिखा हुआ है. तो इसके ऊपर आपने जब रखा अपना प्रोब तो वो एक मैक्सिमम इसका जो बीम पाथ आ रहा है आप चेक कर सकते हैं. वन मोमेंट. See, is coming to be how much? Coming to be 62. Okay, let me measure this with the steel ruler. 62 ही है क्या? बीम पाथ है 62, देख लीजिए. 61, 62. Okay, this is coming to be maximum amplitude of 62. तो अब चेक कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या सच में 62 है, पर्सपेक्स तक की. सी 70 से यहाँ से ये चेक कर लेते हैं. ओके, $62. See, this one is 70 and this is coming to be 62 अराउंड. ओके, सो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रोब है वेदर इट इज अ 70 डिग्री प्रोब और नॉट. अभी हम 60 के लिए ट्राई करते हैं. ओके, सो लेट्स चेंज द प्रोब टू 60 डिग्री. 60 डिग्री का प्रोब हम तब यूज करते हैं जब हमारा मटेरियल की थिकनेस 30 to 40 mm के बीच में हो. ओके, तो हम इसमें चेंज करेंगे, हमारा एंगल चेंज करेंगे, वो की जो कि है 60. ओके, ये हमने कर दिया. ठीक है, तो ये 60 डिग्री है. अभी जब हम 60 डिग्री के प्रोब को यहाँ पे रखेंगे तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये देगा. लेट मी जस्ट पुट इट. तो ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है हमारा कितने पे, विल बी जस्ट, सो ये हमारा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहा है. ओके, सो दिस इज कमिंग टू बी 30. लेट मी शो यू. ये आ रहा है 33. ओके, तो ये 33 आ रहा है. अभी हम मेजर कर लेते हैं. 33 ही है, तो ये डिस्टेंस है 30. सी, इट इज कमिंग टू बी 33
beam path, this distance is going to be 33, right? Around 33. Okay, so this is how we measure 60 degree probe. Now comes 45 degree. तो हम सारे प्रोब डिस्कस करेंगे. ये थर्ड प्रोब है हमारा. अब बारी आई 45 डिग्री प्रोब की. ओके, सो हम 45 यहाँ पे लिखा है 45, इसे कैलिब्रेट करते हैं. तो 45 के लिए फर्स्ट हमें इसमें सेटिंग करनी पड़ेगी. एंगल को रखना पड़ेगा हमें 45 डिग्री. Okay, so this is, we have 45 degree. Okay, so ये हम चेक कर सकते हैं कि 45 डिग्री का ही है कि नहीं. यहाँ पे हम जब अपना प्रोब रख रहे हैं तो perspex की तरफ आ रही है डिस्टेंस. बीम पाथ आ रहा है 72. मैं am putting this in this, इसमें आ रहा है 72. Okay, so let's check 72 है कि नहीं. 45 is this, right? 70, and then here this, right? 70 and then 2. See how it is matching. 72. So in this way we have discussed all the types of probes. और ये हमारी जो मशीन है अल्ट्रासोनिक मशीन जो कि है डिजीस्कैन DS324, ये हमारी है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड, EECI. ओके, सो ये हमारा पूरा लेक्चर इसी पे बेस्ड था कि हम कैसे नॉर्मल प्रोब को, TR प्रोब को और वेरियस एंगल प्रोब को कैसे कैलिब्रेट और कैसे चेक कर सकते हैं दैट वेदर दे आर जेन्युइनली दे आर द एंगल प्रोब और नॉट. ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. यू हैव अ वंडरफुल वन.